ડિસેમ્બરમાં જઈશું. ચલો ટાઈપ્સ ઓફ ડેટામાં આપણે વી હેવ કમ્પ્લીટેડ ક્વોન્ટિટેટિવ ડેટા, ક્વોલિટેટિવ ડેટા. Now page number 4, scale of measurement. The data are categorized using different scale of measurement. Each level of measurement scale has specific properties that determine the various use of statistical analysis. Means, first of all, we need to determine the method or a scale in which we need to measure the data. There are 4 different scale of measurement, which are nominal scale, ordinal scale, interval scale and ratio scale. આ વસ્તુ આપણને શેમાં આવશે? MCQs માં. Now what is nominal scale? That is the first level of measurement. Nominal scale, also called the categorical variable scale. It is defined as the scale used for labeling variable into distinct classification and does not involve quantitative value or order. Means यहाँ पे आपको क्या करना होगा? हर एक स्किल को लेबल करना है. यहाँ पे क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं आएगी. Likewise, married, unmarried, male, female, coffee drinker, non-coffee drinker. इसे हम क्या कहेंगे? First level of measurement. This scale is simplest of the 4 variable measurement scale. Calculation done on this variable will be fertile as there is no numerical value of the option. कोई numerical value इसमें आएगा नहीं. This is the fundamental quantitative research, and a nominal scale is the most fundamental research scale. The sequence in which subgroup are listed make no difference as there is no relationship among subgroup. For example, male and female is called dichotomous. Dichotomous means आप उसको in middle of the scale classify नहीं कर सकते. Male है, female है, ऐसा ही fix हो जाएगा. Nominal scale data analysis. There are 2 primary ways in which nominal scale can be collected. First, by asking open-ended question, the answer of which can be coded to a respective number or label decided by the researcher. Means suppose male female है तो male के लिए M कोड डाल दिया और female के लिए F कोड डाल दिया. The other alternative to collect nominal data to include a multiple choice question in which answer will be labeled. आपको सपोज MSU का फॉर्म भरा तो उसमें आता है मेल या फीमेल, कहीं पे आपको टिक करना है तो वहां पे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उस ऑप्शन को आपको क्या करना है? टिक करना है. इस तरह से वो क्लासिफिकेशन हो जाएगा. In both the cases, the analysis generated data will happen using percentage or mode. Means आप परसेंटेज निकाल सकते हो कि आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ वडोदरा how much percentage is male and how much percentage is female. The most common answer received for the question. It is possible for a single question to have more than one mode, as it is possible for 2 common favorites can exist in a target population. Suppose male female की जगह और कोई चीज हो, suppose coffee drinking, तो कितने लोग कॉफी ड्रिंकर होते हैं, कितने लोग टी ड्रिंकर होते हैं, कितने लोग बोथ होते हैं, कॉफी एंड टी बोथ ड्रिंकर. तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो जाए. Nominal scale example. Nominal scale is often used in research survey, the questionnaire where only variable label hold significance. यहाँ पे एक example है. A customer survey is asking which brand of smartphone you prefer.
क्वेश्चन में ऑप्शन है एप्पल, सैमसंग, वन प्लस. In this survey question, only the name of the brand are significant. यहाँ पे एप्पल का कौन सा मॉडल है, सैमसंग का कौन सा मॉडल है, that is immaterial. For the researcher conducting the consumer research, there is no need for any specific order of this brand. However, while capturing nominal data, researcher conduct analysis based on the associate label. मीन्स एप्पल पहले लिखा हो या सैमसंग पहले लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कंज्यूमर है उसको तो टिक मार्क ही करना है. In the above example, when survey respondents select Apple as their preferred brand, the data entered and associated will be 1. This help in quantifying or answering the final question. तो एप्पल को कोड नंबर क्या दे दिया, 1. तो 1 लिखा होगा तो ये वो किसको प्रीफर करता है, एप्पल को. हाउ मेनी रिस्पोंडेंट सिलेक्ट एप्पल, हाउ मेनी सिलेक्टेड सैमसंग एंड वन प्लस, वो आपको मिल जाएगा. उसके बाद जेंडर, तो मेल मीन्स 1 और फीमेल मीन्स 2, आपको सिलेक्ट ही करना है 1 या 2. पॉलिटिकल प्रेफरेंस, तो आपको क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चाहिए, डेमोक्रेट मीन्स लोकशाही चाहिए, रिपब्लिकन गवर्नमेंट चाहिए. ये यूएस की बुक है इसलिए ये ऑप्शन दिए. इंडिया की बुक में नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, ये तो बायस हो जाता, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये सब लिखा होता, तो ये किसी को प्रीफर कर रहे हैं पहले, ऐसा सब होता, इसलिए कौन सी पार्टी लिखी, यूएस वाली पार्टी लिखी. वेयर डू यू लिव, सबब में, सिटी में या टाउन में, हम कहाँ पे रहते हैं, सिटी में, बराबर. सबब मीन्स गांव, गांव. इन दिस सर्वे क्वेश्चन only the name of the brand are significant. For researcher conducting the consumer research, there is no need for any specific order of this branch. बराबर. उसके बाद ऑर्डिनल स्केल, ये क्या हो गया, सेकेंड लेवल. सेकेंड लेवल ऑफ मेजरमेंट में क्या आएगा, ऑर्डिनल स्केल. यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसी को अरेंज करना होगा. ऑर्डिनल स्केल इज डिफाइंड as a categorical variable measurement scale used to simply depict the order of the variable. Depict means indicate करना, show the order of the variable and not the difference between each of the categorical variable. Means कौन कितना ज्यादा या कौन कितना कम ये नहीं इंडिकेट करते, बट ऑर्डर इंडिकेट करता है कि फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है. These scales are generally used to depict non-mathematical ideas such as frequency, statistification, happiness, degree of pain. ये सब measurement करने के लिए हम इसको use करते हैं. It is quite straightforward to remember the implementation of this scale. Ordinal sounds smaller to order, which exactly the purpose of the scale. For example, income group, lower income group, middle income group, higher income group. अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि कितनी इनकम हो तो वो लोअर में जाएगा या कितनी हायर में जाएगा, रेंडमली डिसाइड करते हैं. ऑर्डिनल स्केल मेंटेन द डिस्क्रिप्शनल क्वालिटीज, इन सबको डिफरेंट कर देते हैं along with the order, but is void means cancel of an origin of scale. Thus, the distance between variable can't be calculated. किसको रिच कहोगे, किसको मिडिल इनकम कहोगे, किसको पुअर कहोगे आप, वो आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते. बराबर. सपोज कोई गीत गाता है, अंकिता गाय छे मीन्स गीत गाय छे, तो अब आपको मेजर करना हो तो कोई कहेगा कि नहीं बहुत अच्छा गाए, कोई कहेगा अच्छा गाए, कोई कहेगा हाँ कितना बुरा गाए. बट कितना अच्छा या कितना बुरा वो मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना. बट आप सुन के तुरंत बता दोगे कि भैया गानो स्पेशल गाए फंक्शन में बोलाइस गावा माटे, क्योंकि
या तो आपको किसी को चुप कराना, या तो बहुत अच्छा गाया, सबके वाह वाह चाहिए, कुछ भी। डिस्क्रिप्शनल क्वालिटीज इंडिकेटिंग टैगिंग प्रॉपर सिमिलर टू द नॉमिनल स्केल। ये प्रॉपर्टीज इसकी कैसी है, टैग करना है आपको, मीन्स विच इज सिमिलर टू नॉमिनल स्केल जैसा ही होगा, बट आप एग्जैक्टली यहाँ पे मेजर नहीं कर सकोगे। इन एडिशन टू विच ऑर्डिनल स्केल हैज ऑल्सो रिलेटिव पोजिशन ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे पोजीशन आएगी, नॉमिनल स्केल में पोजीशन नहीं थी। Origin of this scale is absent due to which there is no fixed start or to zero. चलो, ordinal data and analysis. Ordinal scale data can be presented in tabular or graphical form. Means उसका आप ग्राफ बना सकते हो। For a researcher to conduct a convenient analysis of the data, but यहाँ पे भी क्या नहीं मिलेगा आपको, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं मिलेंगे। The analysis of gathered data will happen using the percentage of median. Median means आप किसको मीडियम लेवल कहोगे, उससे ज्यादा आया तो अच्छा, उससे कम आया तो बुरा। ऑर्डिनल स्केल एग्जाम्पल, सपोज आपको, आप किसी होटल में रुके और आपको 4 ऑप्शन दिए कि भाई होटल की सर्विस से आप वेरी सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड और वेरी सेटिस्फाइड। कभी कभी आप कहीं पे भी कस्टमर सर्विस लेते हो तो वो आपको ये ऑप्शन देते हैं ना कि भाई आपको ये कस्टमर एजेंट से बात करके कैसा लगा, हाँ फीडबैक देना होता है ना, आप उसको रैंक करते हो 1 से 5 नंबर के बराबर। तो 1 से 5 नंबर में आप उसको रैंक करते हो, तो वैसा ही ये क्या हो गया, ऑर्डिनल स्केल। तो ऑर्डिनल स्केल का एग्जाम्पल अगर आपको याद रखना है तो कौन सा याद रखोगे, कस्टमर सर्विस से बात करने के बाद आपने दिया गया फीडबैक, जहां पे आप रैंक दे देते हो, बिकॉज आप उसको एग्जैक्टली मेजर तो नहीं कर पाओगे ना, बट आप रैंक दोगे। हियर द ऑर्डर ऑफ वेरिएबल इज ऑफ प्राइम इंपोर्टेंस एंड सो इज द लेबलिंग। वेरी अनसेटिस्फाइड विल ऑलवेज बी वर्स देन द अनसेटिस्फाइड। ये सबसे बुरा हुआ, ये उससे अच्छा, और ये सबसे अच्छा, मीन्स ये आपने रैंक दे दिया। दिस इज वेयर ऑर्डिनल स्केल इज स्टेप अबव द नॉमिनल स्केल। तो नॉमिनल स्केल से ये अच्छा क्यों है, यहाँ पे आपको थोड़ा इंडिकेशन मिलता है कौन अच्छा है या कौन बुरा। नॉमिनल स्केल में सपोज मेल फीमेल का क्लासिफिकेशन किया, या कॉफी ड्रिंकर नॉन कॉफी ड्रिंकर का क्लासिफिकेशन किया, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कॉफी ड्रिंकर बुरा और नॉन कॉफी ड्रिंकर अच्छा, बिकॉज वो तो जस्ट हैबिट है, मेल फीमेल एक जेंडर है बराबर, वहां पे कोई रैंक नहीं दिया जा सकता, बट कस्टमर के फीडबैक को तो आप रैंक दे सकते हो ना। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हो। एनालाइजिंग रिजल्ट बेस्ड ऑन द ऑर्डर along with the name becomes a convenient process for the researcher। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है उसको कन्वीनियंस रहेगा कि आप किसको कौन सा प्रेफरेंस दोगे, और ये रैंकिंग भी बहुत मैटर करती है। इसीलिए जब भी आप कस्टमर सपोर्ट से बात करोगे वो फीडबैक मांगेंगे, बिकॉज इससे क्या होगा, उनका इंक्रीमेंट होगा। जो लोग कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, जिसकी रेटिंग सबसे ज्यादा अच्छी वाली आई उसको इंक्रीमेंट मिलता है, बट जिसकी रेटिंग बुरी आई उसका जॉब भी जा सकता है। अब आया थर्ड लेवल, जिसमें क्या आएगा, इंटरवल स्केल। एक बार ये 2 लेवल पढ़ लो, हमने जो पढ़ किए ना वो। चलो, इंटरवल स्केल थर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट। चलो, नाउ डेफिनेशन, अब बड़ी डेफिनेशन यू नीड टू प्रिपेयर। Interval scale is defined as a numerical scale, means it is related with the number, where the order of the variable is known as well as the difference between these variables are also known. Variable which have familiar, constant and computable difference are classified using the interval scale.
These scale are effective as they open door for statistical analysis. Means if you are given a numerical data, we can find mean, median, mode with the help of this data. Can be used to calculate the central tendency in this scale. The only drawback of this scale is that there is no pre-decided starting point or a true value 0. यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट या ट्रू वैल्यू 0 मीन्स नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल सपोज किसी की इनकम की शुरुआत करते हैं तो इट मे बी पॉसिबल आप 5000 से शुरुआत करो, तो 0 से शुरू करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जितने भी एम्प्लॉई है उनकी सैलरी मोर देन 5000 ही है. Interval scale contain all the properties of ordinal scale, in addition to which it offers a calculation of the difference between the variable. The main characteristics of this scale is the equidistant difference between the object. Means यहाँ पे जब आप क्लास करोगे तो उसके अंदर डिस्टेंस कैसा रखोगे, सेम रखोगे. फॉर एग्जाम्पल 80 degree is always higher than 50 degree. The difference between these two temperature is the same as the difference between 70 degree and 40 degree. बराबर. तो 80 degree temperature and 50 degree temperature means difference કેટલો આયા 30 degree, અને 40 and 70 ના बीच में भी difference कितना आया 30 degree. Also the value of 0 is arbitrary because negative value of the temperature do exist. 0 end नहीं है हमारा, टेम्परेचर माइनस में भी हो सकता है. ड्यू टू absence of absolute 0, one cannot tell how much temperature is higher or lower. For example 50 डिग्री का टेम्परेचर है और उससे आप नहा रहे हो, तो 50 डिग्री की एक बाल्टी से नहाना है, 2 बाल्टी नहाना है, उसकी जगह 100 डिग्री वाली एक बाल्टी से नहा लो, चलेगा ना कि नहीं चलेगा? गर्म पानी से नहाना है, 50 डिग्री टेम्परेचर वाली 2 बाल्टी से आपको नहाना है, उसकी जगह आपने डिसाइड कर लिया कि 100 डिग्री वाली एक बाल्टी से नहा लेता हूं मैं, चलेगा कि नहीं चलेगा? ना चले. वो सिंघम मूवी में था ना, अगर 20वीं बार से गिरने से नहीं मरता तो 10वीं बार से 2 बार फेंकेंगे. हाँ, तो ऐसा नहीं चलता, बिकॉज 100 डिग्री इज वेरी मच हॉट. Interval scale is often chosen in research cases where the difference between variable is mandate, which can be achieved using nominal or ordinal scale. Interval scale quantity is the difference between two variables where the other two scales are only capable of associating qualitative value or variable. जो nominal scale था या ordinal scale था, उसके अंदर आप नॉमिनल स्केल में तो आप हायर लोअर कुछ मेजर ही नहीं कर सकते थे. ऑर्डिनल स्केल में आप रैंक दे सकते हो, बट ये जो स्केल है इंटरवल स्केल, उसके अंदर आप एग्जैक्ट वैल्यू यूज कर सकते हो. इसीलिए आप मीन, मीडियन, मोड ये सब कैलकुलेट कर सकते हो किसके अंदर, जो इंटरवल स्केल है उसके अंदर. द मीन एंड मीडियन वैल्यूज in an ordinary scale can be evaluated unlike the previous two scale. In statistics, the interval scale is frequently used as a numerical value. Cannot be only assigned a variable, but calculation on the basis of those value can be carried out. आप further calculation भी कर सकते हो. Interval data and analysis. All the technique applicable to nominal scale, ordinal scale analysis is also applicable to interval scale analysis. क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट स्केल आता है उसमें प्रीवियस स्केल की सारी क्वालिटीज आ जाती है. ऑर्डिनल स्केल में क्या था, हमने मेल फीमेल को अलग किया था. उसके नॉमिनल स्केल में क्या था, मेल फीमेल को अलग किया था. ऑर्डिनल स्केल में हम अलग तो कर सकते थे बट रैंक भी दे सकते थे.
जबकि इंटरवल स्केल के अंदर आप अलग भी कर सकते हो, रैंक भी दे सकते हो और न्यूमेरिकल वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। क्लियर? तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हो तो आप उसका यूज करके क्या स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन कर सकते हो। Apart from those techniques, there are few analysis methods such as descriptive statistics, correlation, regression. ये सब आप कहाँ पे इंटरवल स्केल में कर सकते हो। Descriptive statistic in terms of given analysis of the numerical data, which help to describe, depict or summarize the data in a meaningful manner, जिससे आपको कैलकुलेशन में हेल्प रहेगी। Even if interval scale are amazing, they do not calculate true zero value, which is why next scale comes. But true zero value यहाँ पे नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसीलिए कौन सा स्केल आ गया? रेशियो स्केल. That is a fourth level of measurement. रेशियो स्केल का यूज कहाँ पे होगा? मैंने अभी एग्जांपल दिया, वो नहाना है तो 100 डिग्री सेल्सियस की बाल्टी से आप नहा ही नहा सकते, बिकॉज इट इज परसेंटेज वाइज मच हॉटर। तो रेशियो स्केल में हम क्या करेंगे? परसेंटेज वाइज मेजर करेंगे। रेशियो स्केल इज डिफाइंड एज अ वेरिएबल मेजरमेंट स्केल that not only produce the order of the variable but also make the difference vary between variables known along with information on the value of true zero. Means as compared to zero, ये कितना परसेंटेज वाइज चेंज हो रहा है वो हम मेजर कर सकते हैं। It is calculated by assuming that the variable have an option for zero. The difference between the two variable is the same. There is a specific order between the options. Ratio scale accommodates means include the characteristics of three other variable measurement scale. That is labeling the variable, the significance of the order of the variable and calculate difference between the variable. Means ये तीनों चीज इसके अंदर आ गई। Because of the existence of true zero value, the ratio scale does not have negative value. इसमें क्या नहीं आएगा? माइनस नहीं आएगा। To decide when to use a ratio scale, the researcher must observe whether the variable have all the characteristics of interval scale along with the presence of the absolute value zero. For example, suppose हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर कोई चीज 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो आप उसको गर्म कहोगे, और अगर कोई चीज 37 डिग्री सेल्सियस से कम है तो आप उसको क्या कहोगे? ठंडी कहोगे। बराबर, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है। मीन्स 37 डिग्री सेल्सियस इज द ट्रू वैल्यू। इसलिए अगर आप गर्मी में एसी का टेम्परेचर 30 रखोगे ना तो भी आपको गर्मी नहीं लगेगी, बिकॉज आपकी बॉडी टेम्परेचर जो है उससे एसी का टेम्परेचर तो कम ही है। बट गर्मी में अगर आप 24 या 25 रखते हो और बाद में अचानक बहुत गर्मी वाले एटमोस्फियर में चले जाते हो तो बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है और इसी वजह से बीमार पड़ने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हमें ये रूम का एसी का टेम्परेचर भी मॉडरेट रखना चाहिए। चलो, रेशियो डेटा एंड एनालिसिस विद द ऑप्शन ऑफ द ट्रू जीरो, varied inferral and descriptive analysis techniques can be applied to the variables. तो इस variables को आप अलग अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स की। In the addition to the fact that ratio scale does everything that nominal, ordinal और interval scale can do. मीन्स जो नेक्स्ट स्केल आता है ना उसमें ऊपर के तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, इसीलिए जो रेशियो स्केल है उसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल स्केल के तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए।
Ratio scale provide the most detailed information as researcher and statistician can calculate the central tendency using statistical techniques such as mean, median, mode, geometric mean, coefficient of variation. यहाँ पे geometric mean आ गए. अगर वैल्यू नेगेटिव है तो आप क्या नहीं फाइंड कर सकते थे, ज्योमेट्रिक मीन नहीं ढूंढ सकते थे ना, यहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं. रेशियो स्केल के एग्जाम्पल. बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेशियो स्केल आर वेट एंड हाइट. चलो, द फॉलोइंग क्वेश्चन fall under the ratio scale. What is your daughter's current height? Less than 5 feet. तो वेट कितना होना चाहिए? लेस देन 50 किलोग्राम. 5 फीट 1 इंच है, 5 फीट 5 इंच है, तो 51 to 70 किलोग्राम वेट होना चाहिए. 5 फीट 6 इंच से 6 फीट है तो इतना वेट होना चाहिए. तो यहाँ पे आप हाइट और वेट दोनों का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, जिसको आप जनरली BMI के तौर पे मेजर करते हैं. BMI के मुताबिक अगर आप आपका हाइट और वेट मेजर करोगे तब वो आपको बताएगा कि आपकी जो हेल्थ है, बॉडी है, BMI बॉडी मास इंडेक्स वो कैसा है. आप अनहेल्दी हो, हेल्दी हो या फिर ओबेसिटी में हो. मेरा ओबेसिटी में आता है, बराबर. आप में से बहुत सारों का किस में आएगा? वीक में आ जाएगा, बिकॉज हाइट के मुताबिक वेट कम है, वीक में आता है ना. चलो, समरी ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल किस में आएगा? ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो. इसमें आप सीक्वेंस मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो. बट मेल फीमेल है तो उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ऑर्डर कर सकते हैं. तो नॉमिनल स्केल में वो नहीं होगा. मोड आप सभी में फाइंड कर सकते हो. क्यों? मोड मीन्स जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है. मीडियन नॉमिनल के अलावा सब में फाइंड होगा. मीन सिर्फ इंटरवल और रेशियो में फाइंड होगा. डिफरेंस इंटरवल और रेशियो में. एडिशन और सब्सक्रिप्शन इंटरवल और रेशियो में. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिर्फ रेशियो में. एब्सोल्यूट जीरो भी सिर्फ रेशियो में. ये सारी चीजें MCQ में आएगी. ये डायग्राम भी उसके मुताबिक ही है, तो वो आप कंप्लीट करके लेना. उसके बाद का जो पॉइंट है वो पूरा नया पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. बट उसके अंदर आपको अप टू क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, मटेरियल में पेज नंबर 10 तक की सारी आइटम्स हमने सीखी हुई है. तो आपको खुद सारे सम गिन के आने हैं. वो आपको आता है टेली मार्क वाला, बराबर. एक बार देखना, ट्राई करना, सीख कंप्लीट करके आना.